Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আমি মলয় স্যার। আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি তোমাদের শ্যাল আর উইল ছাড়া কিভাবে ফিউচার টেন্স আমরা বোঝাতে পারি বা কথা বলতে পারি বা লিখতে পারি সেটা আমি তোমাদের বুঝিয়েছি। আজকে আমরা শিখব যে শ্যাল আর উইল কিভাবে আমরা কখন আমাদের সেন্টেন্সে লেখার সময় বা বলার সময় আমরা সেটা ব্যবহার করি। मेरा पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को समझाया था कि शैल और विल के अलावा कैसे हम लोग फ्यूचर में लिखते हैं या बात करते हैं या किसी को समझाते हैं। तो मेरा इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कहां शैल और कहां विल यूज किया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर भी हम लोग देखते हैं आज के कैसे ये हम यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूजेस ऑफ शैल एंड विल। सबसे पहले हम लोग विल से शुरू करेंगे। এখানে আমরা উইল দিয়ে শুরু করব। নাম্বার এ, টু ডিসক্রাইব দ্য ফিউচার। ভবিষ্যতের বিবরণ দেওয়ার সময় আমরা विलটাকে यूज করি। भविष्य का वर्णन करने के लिए हम लोग विल यूज करते हैं। नंबर 1, द ट्रेन्स विल बी लेट टुडे बिकॉज ऑफ द वेदर। আবহাওয়ার কারণে আজকে ট্রেনগুলো লেট হবে। मौसम की वजह से आज ट्रेनें लेट होगी। नंबर 2, he will send us the report when he has all the data। সে আমাদের রিপোর্টটা পাঠাবে যখন তার কাছে সব তথ্য বা ডেটা চলে আসবে। वो हमें रिपोर्ट भेजेगा जब उसके पास सारे डेटा होगा। नंबर बी, টু মেক আ প্রেডিকশন। যখন আমরা কোনো প্রেডিকশন দিই বা কোনো আমরা একটা ভবিষ্যৎবাণী করি যেটা ঘটতে পারে আগামী দিনে, তখন আমরা উইলটাকে ব্যবহার করি। নাম্বার 1, আই থিংক ইন্ডিয়া উইল উইন টুডে। আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়া আজকে জিতবে বা ভারত আজকে জিতবে। তাহলে এটা আমরা কি একটা প্রেডিকশন দিচ্ছি, একটা ভবিষ্যৎবাণী করছি। मुझे लगता है कि इंडिया आज जीतेगा। ये मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग ये भविष्यवाणी करते हैं तब हम लोग विल यूज करते हैं। नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रो अ लॉट इन द नेक्स्ट 50 years। পৃথিবীর জনসংখ্যা আগামী 50 বছরে অনেকটাই বেড়ে যাবে। তাহলে এইটা আমরা ভবিষ্যৎবাণী করছি যে এটা হতে পারে, যেটা শিওর হবে যে তা না, এটা আমরা একটা ভবিষ্যৎবাণী করছি যে আগামী 50 বছরে পৃথিবীর সারা বিশ্বের জনসংখ্যাটা অনেকটা বেড়ে যাবে। हम लोग यह भी कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्याएं अगले 50 वर्षों में बहुत बढ़ जाएगा। यह भी हम लोग मतलब 100% कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जब हम लोग भविष्यवाणी करते हैं तब हम लोग विल यूज करते हैं। ठीक है। नंबर सी, to express a decision made at the moment of speaking। কথা বলার সময় কোন সিদ্ধান্ত যখন আমরা প্রকাশ করি তখন আমরা will ব্যবহার করি। मतलब बोलने की समय किए गए निर्णय को व्यक्त करने के लिए हम लोग will यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, the phone rings, I will answer it। মানে যখন আমরা বাড়িতে দেখা যায় যে আমরা সবাই আছি বা 2-3 জন আমরা আছি বাড়িতে, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার, হঠাৎ করে আমাদের ল্যান্ডলাইন ফোনটা যখন বেজে ওঠে তখন কোন একজন আমরা বলি না যে আমি গিয়ে দেখছি যে কে ফোন করেছে বা আমি উত্তর দিচ্ছি। जब हम लोग हमारे फैमिली में 3-4 आदमी रहते हैं, अचानक हमारा लैंडलाइन फोन जब बजते हैं तो हम में से किसी ने ऐसे बोलते हैं ना कि ठीक है मैं जाके देखता हूं, मैं आंसर देता हूं, तब हम लोग विल यूज करते हैं। नंबर 2, नॉक एट द डोर, आई विल गो एंड सी हु इज देयर। দরজায় যখন হয়তো বাড়িতে কেউ এসে কড়া নাড়ে, আমাদের মধ্যে কেউ আমরা বলে উঠি যে আমি গিয়ে দেখছি কে এসেছে। हमारे घर में जब कोई आते हैं, आके दरवाजे पर नॉक करते हैं, तो हम में से किसी ने ऐसे बोल देते हैं कि मैं जाके देखता हूं कौन आए हैं। नंबर डी, टू मेक अ रिक्वेस्ट। যখন আমরা কোনো অনুরোধ করি তখন আমরা will यूज করি। जब हम लोग कोई अनुरोध करते हैं तब हम लोग will यूज करते हैं। नंबर 1,
ক্যান ইউ গেট মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, বা সেটাকে আমরা বলতে পারি যে উইল ইউ গেট মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার। আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে যখন অতটা ফর্মালি আমরা বলি না তখন আমরা ক্যানটাকে ইউজ করি, কিন্তু যখন আমরা ফর্মালি বলি তখন সেই ক্যানটাকে আমরা কিন্তু উইল এ চেঞ্জ করতে পারি। যে ক্যান ইউ গেট মি আ গ্लास ऑफ वाटर এর জায়গায় আমরা বলতে পারি যে विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब हम लोग बोलने के समय स्पोकन इंग्लिश में हम लोग उतना फॉर्मली जब नहीं कहते हैं तब हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जब हम लोग फॉर्मली बोलते हैं लिखने के समय हम लोग ये कैन को क्या करता है विल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके जगह हम लोग विल लगा देते हैं कि कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके जगह हम लोग बोलते हैं विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, यह शैल कभी नहीं यूज करेंगे, यह मैंने लिख के काट दिया, कभी शैल नहीं यूज करेंगे, हर टाइम हम आप लोग विल यूज करेंगे। কখনো শ্যাল এখানে বলবে না, এই সেন্টেন্সটা সবসময় তোমরা উইল ইউজ করবে, কারণ শ্যালটা আমি এখানে কেটে দিয়েছি যাতে তোমরা ভুলটা না করো। নাম্বার 2, উইল ইউ বি কোয়াইট প্লিজ, আই এম ট্রাইং টু মেক অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফোন কল। তুমি দয়া করে একটু চুপ করবে, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ फोन করার চেষ্টা করছি। क्या कृपया करके आप थोड़ा चुप रहेंगे, मैं एक महत्वपूर्ण फोन कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जब हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी को तब हम लोग शैल के जगह विल यूज करेंगे। ठीक है। नंबर ई, टू मेक प्रॉमिसेस एंड ऑफर्स, फॉर अफर्मेटिव ऑफर्स एंड प्रॉमिसेस। যখন আমরা কোনো প্রদান করি, কোনো অফার করি বা কোনো প্রতিজ্ঞা করি, প্রমিস করি, তখন আমরা উইলটাকে ব্যবহার করি। ফর অ্যাফার্মেটিভ অফার্স এন্ড প্রমিসেস, হ্যাঁবাচক কোনো প্রদান করি বা অফার করি বা প্রতিজ্ঞা করি তখন আমরা সেটা উইল ব্যবহার করি। টু মেক প্রমিসেস एंड ऑफर्स, वादे और पेशकश करने के लिए, सकारात्मक प्रस्तावों और वादों के लिए। नंबर 1, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। যখন আমি বাড়িতে পৌঁছাবো তখন আমি তোমাকে फोन করব। जब मैं घर पहुंचूंगा मैं आपको फोन करूंगा या कॉल करूंगा। नंबर 2, सुष्मिता विल हेल्प यू फिनिश द वर्क, डोंट वरी। আপনি চিন্তা করবেন না, সুস্মিতা আপনার কাজটা শেষ করতে আপনাকে সাহায্য করবে। आप चिंता न करें, आपका काम खत्म करने में सुष्मिता आपकी मदद करेगी। नंबर 3, सौमेन एंड सुखेन विल शो यू अराउंड द सिटी। सौमेन और सुखेन আপনাকে শহর ঘুরে দেখাবে। सौमेन और सुखेन आपको शहर दिखाने में मदद करेंगे। तो ये जो हम लोग मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं किसी को, और जब ये अफर्मेटिव सकारात्मक वादे और पेशकश है तब हम लोग विल यूज करेंगे। ठीक है। नंबर 8, टू डिस्क्राइब द कन्सिक्वेंस ऑफ अ कंडीशनल फ्रेज। যখন আমরা কোনো একটা শর্তাবলী বা একটা শর্তের যে ফলাফল যেটা হতে পারে সেটা যখন আমরা তার বিবরণ দিই তখন আমরা সেটা will ইউজ করি। নাম্বার 1, if it rains I will take my umbrella। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমি আমার ছাতাটা সাথে নেব। अगर बारिश हुए तो मैं अपना छाता साथ नहीं लूंगा। नंबर 2, will she come to dinner if I invite her। সে কি আমার সাথে ডিনার করবে বা ডিনারে সে কি আসবে যদি আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাই। क्या वो हमारे साथ डिनर करेंगे अगर मैं उसे आमंत्रित करूं तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कंडीशन आ रहा है सामने। अगर बारिश हो तो मैं छाता साथ में लूंगा, क्या उन्होंने मेरे साथ डिनर करेंगे या आएंगे अगर मैं उन्हें आमंत्रित करूं तो। ठीक है, तो जब ये कंडीशनल सेंटेंस आएंगे तब हम लोग विल यूज करेंगे। যখনই কোনো শর্ত চলে আসছে কোনো বাক্যে তার ফলাফলটা কি আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় উইলটাকে ইউজ করব, কখন আমরা শ্যাল ইউজ করব না। এবার আমরা দেখি শ্যাল আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি। নাম্বার এ, টু মেক অফার্স ইউজিং আই অর উই। যখন
আই বা ভি দিয়ে আমরা কাউকে কিছু প্রশ্নসূচক বাক্যে কোনো আমরা অফার করি তখন আমরা शैलটাকে ব্যবহার করি। आई और वी उपयोग करके जब कोई इंटरवेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक वाक्य में हम लोग किसी को कुछ ऑफर करते हैं तब हम लोग शैल यूज करते हैं। नंबर 1, शैल आई कुक फॉर यू, আমি কি তোমার জন্য বা আপনার জন্য কিছু রান্না করতে পারি? क्या मैं आपके लिए थोड़ा खाना बनाऊं? नंबर 2, शैल वी हेल्प यू विद योर बैग्स, আপনার ব্যাগগুলো ক্যারি করতে বা ব্যাগগুলো উঠাতে বা বহন করতে আপনাকে কি আমরা সাহায্য করতে পারি? क्या हम लोग आपका बैग उठाने में थोड़ा मदद कर सकते हैं? नंबर 3, shall I look after your house while you are away? আমি কি আপনি যখন বাড়িতে থাকবেন না, মানে আমি একটা অফার করছি এখানে, দেখো যে আপনি যখন বাড়িতে থাকবেন না আপনার বাড়িটা কি আমি দেখভাল করতে পারি? তাকে আমি বলছি, আমার কোনো হয়তো গুরুজন বা কোনো চেনা জানা ব্যক্তিকে আমি সেটা একটা অফার করছি আমি, যে আপনি না থাকলে আপনার বাড়িটাকে আমি देखभाल करते पारी। जब आप घर में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, उस वक्त क्या मैं आपका घर का देखभाल कर सकता हूं? नंबर बी, टू मेक सजेशंस यूजिंग आईवी, যখন আমরা কাউকে কোনো সাজেশন দিই आईवी यूज করে তখন আমরা शैलটাকে ব্যবহার করব। जब आईवी उपयोग करके जब हम लोग किसी को कोई सजेशन देंगे तब हम लोग शैल यूज करेंगे। नंबर 1, शैल वी गो फॉर अ वॉक नाउ, এখন কি আমরা একটু হাঁটতে যেতে পারি? আমরা কাউকে সাজেশন দিচ্ছি যে চলো একটু হাঁটতে যাওয়া যাক, তো সেটাই বলছি যে এখন কি আমরা একটু হাঁটতে যেতে পারি? जब हम लोग किसी को कोई आईवी यूज करके कोई सजेशन देते हैं तब हम लोग शैल यूज करते हैं। नंबर 1, शैल वी गो फॉर अ वॉक नाउ, क्या हम लोग अभी थोड़ा टहलने जा सकते हैं? नंबर 2, शैल वी हैव समथिंग टू इट, এখন কি আমাদের কিছু খাওয়া যেতে পারে বা এখন কিছু খাবার পেতে পারি কি? क्या अभी हम लोग कुछ खा सकते हैं, खाने के लिए कुछ मिल सकते हैं अभी? तो ये भी एक सजेशन है, आईवी यूज करके हम लोग बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहां शैल लगेगा। नंबर 3, हु शैल वी इनवाइट टू द पार्टी, আমাদের এই পার্টির জন্য কাকে, আমাদের যে পার্টি একটা হবে সেই পার্টির জন্য আমরা কাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি? हम लोग का जो पार्टी होगा इस पार्टी के लिए किसको हम लोग आमंत्रित हम लोग करेंगे? नंबर 4, व्हाट शैल वी डू आफ्टर वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, আমাদের কাজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি করতে পারি বা কি করব? हम लोग जो शायद एक काम कर रहे हैं और बीच में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये भी एक सजेशन है, तब हम लोग शैल यूज कर रहे हैं। नंबर सी, टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, অব্লিগেশনস মানে কি এখানে একটা বাধ্যতামূলক, যখন এখানে কোন একটা দায়িত্ব বা বাধ্যতামূলক যখন কিছু আমরা বলি বা বোঝাই তখন আমরা शैलটাকে यूज করব। कोई औपचारिक दायित्व को व्यक्त करने के लिए हम लोग शैल यूज करते हैं। नंबर 1, guests shall not remove anything from the rooms, এখানে বলা হচ্ছে যে অতিথিরা রুম থেকে কোনো কিছুই যেন বাইরে না নিয়ে যায়, এটা তাদের একটা দায়িত্ববোধের মধ্যে পড়ে, এটা বাধ্যতামূলক যে তারা এটা করতে পারে না। मेहमान रूम के अंदर से कुछ बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि ये ऑब्लिगेशंस है, ये दायित्व है, वो लोग कुछ नहीं बाहर निकल सकते हैं। नंबर 2, the tenants shall pay the agreed amount on the first day of every month, মানে যখন আমরা বাড়িতে কোনো ভাড়া রেখে রাখি তখন তার সাথে একটা চুক্তি হয় যে আপনি প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখ বা প্রথম দিন আপনি বাড়ির ভাড়া যেটা হবে সেটা আপনাকে দিতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক, তার সাথে সেটা চুক্তি হয়েছে আমাদের। তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা সেন্টেন্সটা ব্যবহার করি যে the tenants shall pay the agreed amount on the first day of every month, মানে তাকে প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে বাড়ির যে ভাড়া সেটা তাকে দিতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক, তখন আমরা शैलটা ব্যবহার করি। जो हमारा घर में जब हम लोग कोई किराएदार को रखते हैं तो शुरू में उनके संग हमारा एक
अग्रीमेंट हो जाता है कि आपको हर महीने में 1 तारीख को आपका जो किराया है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं तब हम लोग शैल यूज करते हैं। ठीक है। नंबर डी, टू मेक प्रमिस। যখন আমরা কোনো প্রমিস করি, আমার একটু আগে আমি তোমাদের বুঝিয়েছি যে প্রমিসের ক্ষেত্রে আমরা উইল ইউজ করি, রাইট? সেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বুঝিয়েছি। এখানে আমরা বলছি যে প্রমিসে আমরা শ্যাল, সেটা ছিল আমাদের, সেখানে আমরা উইল ইউজ করেছি। এখানে আমি আবার বলছি তোমাদের প্রমিসের ক্ষেত্রে শ্যাল আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো। कुछ देर पहले मैं आप लोगों को ये समझा था, जब हम लोग कोई प्रॉमिस करते हैं तब हम लोग विल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ फिर से मैं ये भी बोल रहा हूं कि प्रॉमिस के जब हम लोग कोई प्रॉमिस करेंगे तब हम लोग शैल भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। देखो, नंबर 1, आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गेव मी। আমি কখনো ভুলবো না তুমি আমাকে যে সাহায্যটা করেছিলে। তো আগের সেন্টেন্স গুলো আর এই সেন্টেন্সের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারছো যে এটা আমার একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে, একটা দায়িত্ব, যে আমি যে সাহায্যটা পেয়েছি সেটা আমি কোনোদিন ভুলবো না। ঠিক আছে। वो जो सेंटेंस मैंने आप लोगों को समझाया था और ये सेंटेंस, इसमें जो अंतर जो है आप लोग देखिए कि आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गिव मी। मैं अपने जो मेरे को हेल्प किए थे, मदद किए थे कभी, तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा ड्यूटी है। ठीक है। दो सेंटेंस, ये सेंटेंस में थोड़ा अंतर जो है ये क्लियरली हम लोग को दिखाई दे रहा है। नंबर 2 जो है, आई शैल नॉट बी लेट और आई शांट बी लेट। मैं लेट नहीं होऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ये दायित्वों के अनुसार मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। लेकिन वो जो सेंटेंस था वो थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्शन था, उतना जो मतलब सही तरीके से जो एक दायित्व है, एक प्रॉमिस है, एक ऑब्लिगेशन है, वो सेंटेंस ऐसा नहीं था। लेकिन जब हम लोग इस टाइप का सेंटेंस लिखेंगे या किसी को बोलेंगे, हम लोग शैल यूज करेंगे। नंबर 3, वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান করতে সব রকম কিছুই আমরা করব। ठीक है। तो वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम लोग ये जो समस्याएं हैं ये समाधान करने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो सब हम लोग करेंगे। ये हम लोग मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा हम लोग करेंगे। नंबर ई, टू डिस्क्राइब द फ्यूचर वेरी फॉर्मली। ভবিষ্যৎটাকে যখন আমরা অনেক ফর্মালি কিছু বলি যে ভবিষ্যতে এটা হবে, তখন আমরা शैल यूज करी। भविष्य का बहुत औपचारिक रूप से वर्णन करने के लिए हम लोग शैल यूज करेंगे। नंबर 1, वी शैल ओवरकम दिस डिफिकल्ट मोमेंट। আমাদের এই কঠিন সময়টা আমরা কাটিয়ে উঠবই। ये जो कठिन समय में से हम लोग गुजर रहे हैं, ये हम लोग ओवरकम करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा सेंटेंस जब हम लोग बोलेंगे या ऐसा बात जब हम लोग कहेंगे या लिखेंगे तब हम लोग शैल यूज करेंगे। नंबर 2, आवर हेडमास्टर शैल बिगिन हिज लेक्चर एट 2:30 PM। আমাদের হেডমাস্টার উনি ওনার লেকচারটা শুরু করবেন 2:30, বিকাল 2:30-এ। তাহলে এখানে আমরা কি ভবিষ্যতের কথা বলছি ভীষণ ফর্মালি, যে আমাদের প্রধান শিক্ষক ওনার लेक्चरটা বিকাল 2:30-এ शुरू करबेन। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो हेडमास्टर है उन्होंने उनका जो मतलब भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, वो 2:30 बजे शुरू करेंगे। और एक सेंटेंस देखो, मिस्टर रॉय, এটা প্রপার নাউন হয়ে যাচ্ছে। मिस्टर रॉय शैल बिगिन हिज टॉक एट 2:30 PM। मिस्टर रॉय उनका जो बात या जो कहना चाहेंगे वो शुरू करेंगे 2:30 बजे। ठीक है। তাহলে এখানে বোঝা গেল যে শ্যালটা কোথায় ইউজ করি আমরা, উইলটা কোথায় ইউজ করি, পুরোটাই তোমরা আজকে বুঝতে পেরেছো। তো নেক্সট টাইম এটা তোমরা মাথায় রাখবে যে
কোথায় শ্যাল তোমরা ইউজ করবে এবং কোথায় উইল ইউজ করবে। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা এই চ্যানেলটা তোমাদের বন্ধু বান্ধব সবাইকে শেয়ার করবে এবং এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পরপর পেতে পারো।